Assalamu alaikum, beautiful people. So, today I would be talking about grief stages. The last video I did was on child loss and how to deal with it. And so, I thought that I talked about it, but I should tell about the grief stages as well so that people know how to overcome it. Grief is something that everybody goes through. We all have lost someone in our lives, or we all will lose someone in our life sooner or later. So it's the sad reality of life, and we all have to go through it. So we all need to learn how to cope up with it, how to get out of that loss, how to get out of that grief, and how to manage our emotions, and how to get back to the routine and normal life. So, first of all, I'll tell you the things that nobody talks about or nobody tells you when you're going through grief. And then I'll tell you the stages of grief which one goes through if you lose someone. And so that you're aware about those stages and you can assess easily about yourself that what you need to do get out of that grief. So whenever you lose someone, you come across these things कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं तो आपको वो ये कहते हैं कि बस सब्र करो, अब कुछ नहीं किया जा सकता, जाने वाले को क्यों रो रहे हो, अब कुछ किया नहीं जा सकता तो बेहतर है कि भूल जाओ और अपने बच्चों के लिए अपने आप को संभालो, अपने बीवी के लिए अपने आप को संभालो, अपने पेरेंट्स के लिए अपने आप को संभालो. So they are always telling you to stop feeling what you're feeling and be thankful for everything. और ये कि इससे बहुत बुरा भी हो सकता था, शुक्र करो कि बस इतना सा हुआ है. So I have lost someone as well. I have lost a son as well, and I have gone through these statements as well. So I know how a person feels when he or she goes through a loss and how these statements impact the person. I know acceptance is important. I know acceptance is really necessary to get out of it and to get back to normal. But at that point of time, right after the loss, you are not in that phase to accept things. आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो you are sort of in shock and in denial, and you are not ready to accept the reality. तो उस टाइम पे एक्सेप्टेंस आ नहीं सकती, वो थोड़े टाइम के बाद आती है. तो उस टाइम पे व्हेन यू आर आस्किंग अ पर्सन टू स्टॉप द फीलिंग्स एंड टू स्टॉप द थॉट्स एंड टू स्टॉप ऑल द इमोशंस वन इज़ फीलिंग, तो वो चीज़ें सप्रेस करके फिर लेटर ऑन लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं. इस तरह की स्टेटमेंट्स ऑफ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, they are actually equivalent to denial. Like you are asking that person to deny your emotions and to be okay with everything and not experience those emotions, और उसकी वजह से वो later on life में वो हमेशा डिनाई ही करता रहेगा अपनी फीलिंग्स को, प्रोसेस को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देती है, ज़्यादा पेनफुल बना देती है, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ ऑलवेज स्टक इन दैट फेज फॉर एवर. इसकी बजाय जो वीकनेस और वल्नरेबिलिटी है दैट शुड बी एक्सेप्टेड. आप दूसरे को ये कहने की बजाय कि स्टे स्ट्रॉन्ग, ये भी कह सकते हैं कि इट्स वेरी सैड मोमेंट, और इस टाइम पर वल्नरेबल होना, परेशान होना, दुखी होना, वीक फील करना या टूटा हुआ बिखरा हुआ फील करना, इट्स टोटली फाइन. You are stronger than this and you will get out of it, and stay strong, you will get out of it. So instead of stopping those emotions, you are accepting those weakness and vulnerabilities, and you are asking that person to grieve, as well as telling that person that you are strong enough and you can get out of it stronger and braver. दूसरी चीज़ की अवेयरनेस जो हम लोगों को नहीं होती वो ये है कि वेन एवर यू लूज समवन एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस ऑल ग्रीविंग प्रोसेस, आप एक गिल्ट के फेज से भी गुजरते हैं. यू आर गिल्टी अबाउट समथिंग, ठीक है, यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस्ट वन. या तो आपको सर्वाइवर्स गिल्ट हो रही होती है जिसमें यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि
इसकी बजाय मैं चला जाता, या मैं भी चला जाऊँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मेरी भी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर यू आर फीलिंग गिल्टी ओवर समथिंग यू शुड हैव डन और समथिंग दैट was not done, and that you are blaming yourself for that and you are blaming for the loss of that person. कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कर लेता तो ये बच जाता, अगर मैं इसकी बजाय ये डिसीजन ले लेता तो बेहतर होता, अगर मैं इस जगह की बजाय यहाँ ले जाता तो ये होता, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी उससे बहुत अरसे से आर्गुमेंट था और मुलाकात नहीं थी तो मैं मुलाकात कर लेता, मैं आखिरी मुलाकात कर लेता, बात कर लेता। ये सारी चीज़ें हर एक की लाइफ, हर एक का डिफरेंट गिल्ट होता है, और ये फेज़ भी हर इंसान में आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में. अब इस टाइम पे you have to tell yourself that you have to be aware that it is the phase of this grieving process. जब आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे कि ग्रीफ के प्रोसेस में गिल्ट आता है, तो you will not get out of it. When you are aware that it's a part of this grieving process and you are not the issue, you were not responsible for all of this, you can help yourself better and you can get out of it better. In my case, I would also feel guilty about so many things, and I would tell myself I could have done this better, I could have done that better. But at the end of the day, I told myself that we did all that we could, but it was not us that were the reason. It was just fate, and it happens with everyone. It would happen with everyone sooner or later. तो इस फेज़ की अवेयरनेस कैन हेल्प अस गेट आउट ऑफ इट. थर्ड चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, वो ये है कि देयर इज़ नो टाइम लाइन टू गेट आउट ऑफ इट. कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने डेज़ के बाद ये स्टेज चली जाएगी, इतने डेज़ के बाद ये स्टेज आ जाएगी. एक रफ़ टाइमलाइन होती है ऑब्वियसली हर चीज़ की. विद इन few months you sort of start getting better and you learn to live with the loss and you learn to live with that pain, but there's no specific timeline. Everybody can go through these stages in different ways, so it's completely fine. और दूसरी बात ये कि you cannot forget that chapter of life. You learn to live with it, you learn to live with the pain, but you cannot take that chapter out of your life. So it's okay to live with it. It's okay to have that chapter in your life and tell yourself that you have to work to get out of it, and tell yourself that it's okay to have a bad chapter in your life, because life is a combination of good and bad. So the bad parts, they make us strong. Acceptance is not just accepting about death, ठीक है, और ये overnight नहीं होता. और even if you undergo all these stages, you can always remit back to these stages. ठीक है, अगर आप एक स्टेज से दूसरे पे चले गए हैं, अगर आप एक्सेप्टेंस तक आ गए हैं, तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेमोरी या फ्लैशबैक, कोई इवेंट ऐसा हो जो आपको फिर से वो सारे प्रोसेस से गुजारे, फिर से आपको सारी फ्लैशबैक्स आएँ, फिर से आपको सारी चीज़ें याद आएँ. तो ये टाइम एंड अगेन होता रहता है. इवन इफ़ यू गेट कम्प्लीटली ओके विद इट एंड इवन इफ़ यू लर्न टू लिव विद इट, समटाइम्स सडनली outburst of emotions happens and you suddenly remember all those things. और कोई भी एक ट्रिगर होता है, कोई भी एक चीज़ होती है जो आपको फ़ौरन याद करा देती है और आपको पूरी मेमोरी लेन आपको रिव्यू हो जाती है, रिकैप हो जाती है. तो इट्स ओके. ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस आ जाए और बस फिर वो आ जाए और फिर ना जाए और दोबारा से आप परेशान मत हो, सैड मत हो, hurt मत हो. It's okay, it happens, and you have to tell yourself that this would happen. You'll improve and you can come back. You will improve and you can come back, and it's okay to take some time.
and it's okay to talk to someone for that. If you're not getting over it, if you're not getting to the acceptance stage, and if you think your life is being, your functioning is affected, your life has been affected, so it's better to consult some professional help, because they'll help you get out of it, or आपको different activities और exercises बताएंगे जिसकी वजह से you can help yourself manage your emotions and you can get out of it. तो अब बात हो गई इन पॉइंट्स की जो कि लोग जिसके बारे में बात नहीं करते या अवेयर नहीं होते. अब हम बात करते हैं ग्रीफ स्टेजेस की. सो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है शॉक या डिनाइल की. जब भी किसी लव्ड वन या यू लूज समवन, तो सबसे पहले तो आप शॉक में चले जाते हैं और डिनाइल में चले जाते हैं. तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं डिनाइल में या शॉक में. कुछ लोग नम हो जाते हैं. कोई हैवी या सीरियस न्यूज़ जिसको, सरप्राइजिंग न्यूज़ जिसको हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ना कर सके फ़ौरन, इट सॉर्ट ऑफ स्टॉप्स दोज थॉट्स फॉर अ वाइल, एंड द ब्रेन लेट्स इट सीप इन स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो कुछ टाइम के लिए आप डिनाइल में जाते हैं. जिससे जो सेकंड स्टेज है वो है एंगर. अच्छा, अब व्हेन यू लूज समवन यू स्टार्ट आस्किंग और यू स्टार्ट डिबेटिंग एंड यू गेट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. ये फ्यूरियस होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से, एंगर आउटबर्स्ट होने तक कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई भी इमोशन की रेंज हो सकती है. इसमें यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग दैट व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों सफ़र करता हूँ. यू कैन फाइट विद समवन, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद समवन or with the supreme authority. So that's one of the stages as well, and it's okay to be angry or frustrated at the loss for some time. And जो थर्ड स्टेज है वो है बारगेनिंग. इसमें इंसान ये करता है कि द पर्सन स्टार्ट्स टू बारगेन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन with some other thing या with the supreme authority. कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान ये कहेगा कि अल्लाह मियाँ इसकी बजाय मुझे उठा लेना था, या इसकी बजाय ये हो जाता. नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ इज़ डिप्रेशन, जिसमें आप डिप्रेसिव स्टेज से गुजरते हैं. आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है. यू लूज़ इंटरेस्ट इन लाइफ, आप कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आप खामोश हो जाते हैं, और ये वाले सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. और बिकॉज इस टाइम पे आप डिनाइल से निकल के एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं, और आपके अंदर ये थॉट सीप इन करना शुरू कर देती है कि नाउ दिस एक्चुअली हैपन्ड एंड दिस इज़ द रियलिटी. तो उसकी वजह से डिप्रेसिव फीलिंग और डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. सो डिप्रेशन, जो डिप्रेसिव फेज़ है वो एक इलनेस नहीं है, बल्कि दैट्स अ फेज़ ऑफ ग्रीफ. सो इस व्हेन यू लूज समवन यू कैन नॉट से कि डिप्रेशन is a disorder that the person is facing. It's just a phase of grief that the person is going through. So it's okay to go through this phase. जो लास्ट फेज़ है वो एक्सेप्टेंस का आता है, जिसमें द पर्सन एक्सेप्ट्स द फेट. उसको ये यकीन हो जाता है या फिर वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये हो गया है, अब आई हैव लॉस्ट समवन, अब नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट, अब मुझे अपनी लाइफ में वापस आना चाहिए. और ही रियलाइजेज़ द लॉस and he realizes he or she realizes that it is normal and it's the part of life, and that person now learns to live with the pain and to live with that loss and with that chapter of the life. So that's the stage when you start moving on, when you actually get over this and get back into your life. अब जो इम्पॉर्टेंट बात वो इन स्टेजेस की ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लीनियर या हिराकी में ही ये स्टेजेस से बंदा गुजरे, बल्कि जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यू कैन ऑलवेज़ गो थ्रू एनी स्टेज ऑफ दैट ग्रीफ. कुछ लोग इवन बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते भी नहीं हैं, स्किप कर देते हैं. दे डोंट गो थ्रू डिनाइल, सम माइट नॉट गो थ्रू एंगर, सम माइट नॉट
go through guilt phase of grief, और कुछ लोग सडनली बहुत एब्रप्टली शिफ्ट करते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। तो हर एक का प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर एक की कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं, हर एक का द वे टू डील विद द लॉस डिफरेंट होता है। तो यू कैन नॉट टेल योर सेल्फ कि मैं अब इस स्टेज पे हूँ तो अब मैं इस पे हूँ। द मेन थिंग इज़ दैट you need to realize that the losses happened and now you have to get over it। आपने अपने आप को ये बताना है कि the love and the moments that you spent with that person, those are still with you। the person or the physical being is not with you, but the spiritual aspect, the love, care and the moments that you remember, you still remember, you have that ability to remember those moments। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। जब मेमोरीज जो आपको बार बार जहन में आती हैं, वो मेमोरीज इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड ओवर इट कि वाई डू आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स, वाई डू आई गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, be thankful and be happy about it that you are able to remember those memories, yeah, you have those moments that you can cherish, and that would help you get out of it as well if you change the way you think about those memories। so I hope this video helped you all, and please share it with people because maybe it helps someone who is struggling in getting over it। and please do consult someone professional if you think that you're stuck at it some point, somewhere in some point in your life, it's better to seek help, it's better to go to a professional because they'll help you get out of it in an effective manner। they'll tell you activities और वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से आप अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और बहुत ईज़िली और इफ़ेक्टिवली इस सारे प्रोसेस से बाहर निकल सकेंगे। So please like, comment and subscribe the channel for future content and share it with people so that people might get help। Thank you। Allah Hafiz।